Hi friends, today I am going to discuss about the main provisions as well as the main causes for the enactment of the Indian Councils Act 1909. Okay, so the Indian Council Act 1909 is also known as the Morley-Minto Act. Okay, because Mr. Morley was the then Secretary of State for India and Mr. Minto was the Viceroy of India. Okay, because in the year 1905 British Parliament had underwent the election. Okay, and the Liberal Party emerged as a winner. Okay, so Mr. Morley was a minister from the Liberal Party. Okay, who was appointed as the Secretary of State for India. Okay, so the Act of the Indian Council Act of 1909 is also known as the Morley-Minto Act. Okay, so the chief feature of this act, okay, or the prominent feature of this act for which this Indian Council Act of 1809 is known is the communal representation which was given to Muslims. The communal representation system or the separate representation for the people who were in minorities. Now let us discuss about the last of the sisters of the Indian Councils Act. Okay, so see. Indian Council Act 1909. See, also known as Morley-Minto reforms. Okay, also known as Morley-Minto reforms. Mr. Morley was the secretary of state. Okay, and Lord Minto was made the Viceroy of India. Okay, Lord Morley was the Secretary of State and Lord Minto was made the Viceroy of India. Therefore, this act therefore the Indian Council Act of 1909 is also popularly known as Morley-Minto reforms. Okay, the reforms were taken out in order to safeguard the interests of the minorities. Okay, so see, अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा के लिए, ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि सांप्रदायिक तौर पे जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इलेक्शन के थ्रू वो मिलना चाहिए ताकि अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा हो सके. ठीक है, तो सर्वप्रथम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से इसकी शुरुआत की गई. ठीक है, नाउ वी विल सी द मेन causes for the enactment of Indian Council Act of 1909. Okay, so see, causes for the enactment Indian Council Act of 1909. See, among the many causes, okay, the chief causes which were responsible for the enactment of the Indian Council Act of 1909, that I am going to discuss. Okay, see, the previous council acts which were enacted were no better than a debating agency or debating organization. Okay, because the
the members of the legislative council could not ask any question related with the finance. Okay, no questions were to be asked by the legislative members on the issues of finance. Okay, and as well as the president of the legislative council was empowered enough to disallow any question without assigning any reason. Okay, therefore the previous acts of Indian Council Acts were merely a or no better than a debating agency. Okay. See, members of legislative assembly or council, you can say, legislative council could not ask any question related to financial matters. Apart from this, the president of the legislative council was empowered enough to disallow any question without assigning any proper cause or reason. Okay, so previous council acts were no better than a debating council. See, देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के कोई मेंबर जो थे वो फाइनेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसका जो सबसे बड़ा खामी था प्रीवियस काउंसिल एक्ट का वो ये था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे वो कोई क्वेश्चन फाइनेंस से रिलेटेड नहीं कर सकते थे। और दूसरा इसका ये खामी था कि जो प्रेसिडेंट था, जो अध्यक्ष होता था लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप कर सकता था, ठीक है, पूछने से मना कर देता, कहता कि क्वेश्चन इनवैलिड है, बंद कीजिए, ठीक है। और वो ऐसा कर सकता था, डिसअलाउ कर सकता था बिना कोई कारण बताए हुए कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों ड्रॉप किया ये इस क्वेश्चन को। उसका जवाब वो देने के लिए बाध्य नहीं था, वो क्वेश्चन को डिसअलाउ कर सकता था विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, बिना कोई रीजन बताए, ठीक है। तो ये जो है सो चीफ कॉज था, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के आने का। और इसके अलावे और भी बहुत सारे कॉज थे, सोशल कॉज, ठीक है, सोशल हेल्थ इश्यूज, ठीक है। और इसके साथ साथ वाइसरॉय की पॉलिसी, जो प्रीवियस वाइसरॉय था, जैसे कि लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो कि 1898 से 1905 तक वाइसरॉय रहे, उनका जो कार्यकाल था वो काफ़ी विवादित, ठीक है, और काफ़ी अनपॉपुलर, ठीक है, अलोकप्रिय था, लोकप्रिय ना हो गया, काफ़ी बहुत ज़्यादा अलोकप्रिय था, ठीक है, क्योंकि उनके द्वारा कुछ निर्णय लिया गया, जैसे बंगाल का विभाजन, ठीक है, मतलब ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का सेपरेशन, ठीक है, ताकि मुस्लिमों को आकर्षित किया जा सके, ठीक है, और एक तरह से
फूट पड़े, हिंदू और मुस्लिम के संगठन में फूट पड़े, जिससे कि ब्रिटिश का शासन चलता रहे, ठीक है, बिना किसी रुकावट के, ठीक है। तो और उसके अलावे, ठीक है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट जो था 1900 का, जिसमें कॉरपोरेशन में पहले 75 मेंबर्स होते थे, ठीक है, उसको घटा करके 50 कर दिया, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी एक्ट जो था 1904 का, ठीक है, वो भी काफ़ी अनपॉपुलर रहा। उसके अलावा 1904 में इन्होंने बजट सेशन में भाषण दे दिया कि किसी भी इंडियन को जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के माध्यम से आते हैं उनको ऊंचे ओहदे पर नहीं ले जाया जा सकता है कंपनी के, ठीक है। ये अधिकार सिर्फ अंग्रेजों का है कि सिविल सर्विस के माध्यम से आए और सबसे ऊंचे पद तक गए, लेकिन इंडियन को नहीं मिलेगा। तो ये सब जो बयान थे और उनके द्वारा जो कारनामे थे, ठीक है, तो वो काफ़ी विरोधाभास रहा, ठीक है, जिसके चलते ये ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर से अलोकप्रिय होने लगी लोगों के बीच में, ठीक है। See, apart from that cause, okay, see, plague broke out in the country, okay, and after plague famine occurred. Famine occurred, and famine was followed by bubonic plague in Maharashtra. Mr. Run, the unpopular plague commissioner, was shot dead. See, देश में जहाँ तहाँ प्लेग का महामारी फैल गया, ठीक है, और प्लेग के बाद क्या हो गया, अकाल पड़ गया, ठीक है। तो लोगों की आर्थिक स्थिति क्या हो गई, और खराब, लेकिन टैक्सेशन में कमी नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अकाल के बाद फिर से क्या हो गया, ब्यूबोनिक प्लेग फैल गया महाराष्ट्र में। ब्यूबोनिक प्लेग भी एक प्रकार का प्लेग ही था, ठीक है, मात्र अंतर इसके टाइप में था, ठीक है। ये ज़्यादा खतरनाक था प्लेग से, ब्यूबोनिक प्लेग, ठीक है, जो महाराष्ट्र में फैल गया, ठीक है। और मिस्टर रंड थे, रान, जो कि प्लेग के कमिश्नर नियुक्त किए गए थे, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा अलोकप्रिय थे भारतीयों के बीच में अपने अपने नियम कानून थोपने के लिए, ठीक है। तो इनको मार दिया गया, इनका मर्डर कर दिया गया, ठीक है। तो ये सब जो गतिविधियाँ थी, जो कंट्री में अनरेस्ट एंड डिसरप्शन ऑफ पीस का जो ये चल रहा था, ठीक है, अनरेस्ट था, प्लस क्या था, कुछ जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो विरोध हुआ, तो उसके बाद प्रेस को आज़ादी मिल गई। तो कुछ नेशनल डेलीज थे लोकल, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थे, जैसे युगांतर था, केसरी था। तो ये लोग लोगों को एकत्रित करने में और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने में कामयाब रहे, ठीक है, अपने लेखों के द्वारा, ठीक है। तो ये सब क्या किया कि अंग्रेज़ के खिलाफ फिर से लोग यूनाइट होने लगे, ठीक है। तो और क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ बढ़ गई, ठीक है। जैसे कि पहले को लोग क्या थे, मतलब शांति से 1857 का एक हिंसक विद्रोह था, ठीक है, उसके बाद कुछ दिन तक शांति रहा, ठीक है, लेकिन फिर से वो मोमेंट खराब होने लगा, बनने लगा, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे 3 लोग प्रमुख रूप से जिम्मेदार मानते थे ब्रिटिशर, लाल बाल पाल, सी,
लाल बाल एंड पाल, ये जो ट्रियो, ये जो तीनों की जोड़ी थी, ये लोगों को जागरूक करने के लिए ये लोग लिखते थे, लेख लिखते थे, ठीक है, लोगों में जागरूकता पैदा करते थे, चेतना जागृत करते थे। और ये लोग एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर। इनका ये मानना था, इन तीनों का, कि सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक सुधार लाने से, ठीक है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाने से आज़ादी नहीं मिलेगी और लोगों का जो कंडीशन है, लोगों के हालत में सुधार नहीं होगा, ठीक है। इसको करने के लिए, ठीक है, सरकार के द्वारा लाई गई नीतियों का विरोध, ठीक है, स्ट्राइक और उनके प्रोडक्ट का बायकॉट, ठीक है। सो इनका जो मेजर हथियार था वो बायकॉट, स्ट्राइक एंड नॉन कोऑपरेशन, मीन्स ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट किसी भी पॉलिसी में नहीं करेंगे। तो इन पॉलिसियों के चलते ये लोग एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है, अपने विचारों से। कुछ लीडर मॉडरेट्स थे, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, मॉडरेट लीडर थे कांग्रेस के, और ये लोग कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट लीडर में आते थे। उग्रवादी विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा, उग्रवादी नहीं कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचारधारा, उग्र स्वभाव के थे। और मॉडरेट्स में आ गए, मॉडरेट्स गोपाल कृष्ण गोखले, और उसके बाद कौन थे, लिबरल थे। 3 तरह के लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स एंड लिबरल्स। तो लिबरल्स में कौन थे, दादा भाई नेहरू जी, दादा भाई नेहरू जी को लिबरल्स के रूप में जाना जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोगों को मॉडरेट, ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस और ये बाल पाल, इन लोगों को एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में घोषित थे, लीडर के रूप में, एक्सट्रीमिस्ट लीडर के रूप में, क्रांतिकारी विचारधारा। तो इन लोगों को टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, ऐसा मानते थे वो लोग, ठीक है, कि जितना भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं वो इनके बहकावे में लोग करते हैं, ठीक है, ये लोगों को उकसाने और भड़काने का काम करते हैं, लाल बाल पाल, ठीक है। इनका पूरा नाम हो गया लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो ये सब सारे कॉज होते जा रहे थे, ठीक है, जो कि एक कारण बने कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 लाना पड़ा। इनके अलावा और भी कॉज हैं जो मैं बता देता हूँ। देखिए 1905 में बंगाल का बंटवारा, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, ओके, इनटू ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। 1905 में ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल कर दिया गया, मुस्लिमों को रिझाने के लिए और हिंदू और मुस्लिमों में फूट डालने के लिए, ठीक है। तो जिसका जम के विरोध हुआ, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले although a moderate leader condemned the partition of Bengal,
at 1905 session of INC at Benares से 1905 में बंटवारा किया गया, ठीक है, बंगाल, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को। और उसके बाद क्या हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के कांग्रेस के 1905 के कांग्रेस के महाधिवेशन में, जो कि बनारस में हुआ, ठीक है, बनारस में, उसमें भी उन्होंने भी विरोध किया, जो कि एक नरम दल के नेता होते हुए भी, ठीक है, उन्होंने विरोध किया, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना पॉलिसी चेंज करना पड़ा, ठीक है, और 1911 से इन 1911 रीयूनिफिकेशन ऑफ बंगाल वाज डन। और 1911 में क्या किया गया, लोगों के अपार विरोध के बाद 1911 में बंगाल को फिर से एक कर दिया गया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को फिर से एक कर दिया गया, ठीक है। तो ये सारे कॉज हैं, कुछ लोगों में कुछ लोग, ये सारे कॉज हैं, ठीक है, ये सारे कॉज हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि भारतीयों के रवैये से, ठीक है, इंडियंस भारतीयों के व्यवहार और रवैया से, ठीक है, रवैयों से अंग्रेज भी नाखुश लग रहे हैं, ठीक है, और अंग्रेजों के रवैया से भारतीय भी नाखुश हैं, जैसे कि बंटवारा कर दिया, ठीक है, और जैसे कि भारतीय लोग रंड को मार दिए, प्लेग कमिश्नर को, ठीक है, और भी बहुत सारा मतलब आतंकी गतिविधि था, जैसे एक ट्रेन को ब्लो अप करने की बात चली थी, मतलब उड़ा देने की बात नहीं चली, उड़ाने की असफल प्रयास किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जा रहे थे। एक ट्रेन जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का था और वो जा रहे थे, तो उसको उड़ाने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो इनके गतिविधि, भारतीयों के गतिविधि से अंग्रेज भी नाखुश थे, और अंग्रेजों के गतिविधि से और नीतियों से भारतीय भी नाखुश थे। तो इन सब के कारण इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को लाया गया, ठीक है। देखते हैं आगे। ये सभी ट्रिक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि पूछते हैं, ठीक है। सो ध्यान देने की बात है, जैसे कि कांग्रेस का जो आईएनसी का जो सेशन हेल्ड हुआ, कहाँ पे कौन सा निर्णय लिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में कौन सा निर्णय लिया गया, या किस प्रेसिडेंट ने क्या कहा, ठीक है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा विदेशों में भी कुछ घटनाएं हुई, अपने देश के अलावा कुछ घटनाएं विदेशों में भी हुई, जिससे भी लोगों में एक नया जोश जगा, ठीक है, जिसमें से प्रमुख था एबाइसिनिया और इटली का युद्ध, ठीक है, जिसमें एबाइसिनिया जो है सो जीत गया, ठीक है। 1896 में युद्ध हुआ था, जिसमें एबाइसिनिया ने इटली को हरा दिया, ठीक है। और 1905 में जापान और रसिया का युद्ध हुआ था, जिसमें कि जापान ने रसिया को हरा दिया। एक छोटा सा कंट्री लोगों में एक जोश जगा दिया, भारतीय लोगों में एक जोश जगा दिया कि एक छोटा सा कंट्री जापान और इतने बड़े यूरोपियन कंट्री, चूँकि जापान एशिया में था और रसिया यूरोप में था, तो एक छोटा सा जापान रसिया जैसे बड़े कंट्री को हरा दिया, ठीक है। तो इतना बड़ा भारत एक छोटे सा अंग्रेज का गुलाम कैसे बन सकता है। तो इस तरह से लोगों को उत्तेजित और लोगों में एक साहस भर दिया, ठीक है। सो द विक्ट्री ऑफ एबाइसिनिया
जापान ओवर रसिया in 1905। ओके, भारतीय लोग इस कदर जोश में थे, ठीक है, उत्साहित हो गए इस घटना से कि अमृत बाजार पत्रिका exhorted that से ये अमृत बाजार पत्रिका जो है एक बंगाली न्यूज़पेपर है, एक बंगाली न्यूज़पेपर था अमृत बाजार पत्रिका। ये सब प्री में पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्रीलिम्स में पूछ देता है कि कौन सा पत्रिका कहाँ का था, ठीक है, और उस पत्रिका में कौन सा कोई अगर अहम बात निकलता था तो वो भी पूछ देता था कि कहाँ से है और क्या उसने छापा था विवादित। तो अमृत बाजार पत्रिका एक बंगाली न्यूज़पेपर था। इसने कहा व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन Japanese and Bengalis, except that the former was armed and later was unarmed with high-handed and suspicious government से अमृत बाजार पत्रिका ने क्या कहा? एक्सपोर्टेड का मतलब क्या हो गया? बल दे के कुछ बोलना, किसी बात पे बल दे के बोलना। तो अमृत बाजार पत्रिका ने क्या कहा इस युद्ध को लेके? उसने ये कहा कि जापानियों और बंगालियों में क्या अंतर था? मात्र यही अंतर था, सिर्फ और सिर्फ ये अंतर था कि जापानीज जो है फॉर्मर का किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? फॉर्मर सब जापानीज के लिए। फॉर्मर का मतलब पहले मीन्स जापानीज और बंगालीज जो यहाँ पे हैं, तो फॉर्मर हो गया जापानीज, ठीक है। एंड लेटर किसके लिए प्रयुक्त हुआ? लेटर प्रयोग हुआ बंगालीज के लिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि जापानीज और बंगाली में क्या अंतर था? जापानी और बंगाली में सिर्फ ये अंतर था, सिर्फ और सिर्फ ये कि जापानीज लोग हथियारों से लैस थे और बंगालीज लोग बिना हथियार के थे, ठीक है, क्योंकि इन पे काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन था, प्रतिबंध था गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, मतलब एक सस्पिशियस गवर्नमेंट के द्वारा। सस्पिशन का मतलब क्या हो गया? शंका, ठीक है। तो गवर्नमेंट सरकार जो थी सो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस रहती थी, सशंकित रहती थी लोगों के प्रति, ठीक है। तो ये अंतर था, ठीक है, इसने ये कहा। इसके अलावा और क्या था? देखिए, इसके अलावा और भी कुछ विदेशी गतिविधियां थी। The conditions as well as standard of living of people in Egypt, Persia and Turkestan were improving। देखिए, इजिप्ट, पर्सिया और तुर्की, यहाँ पे लोगों के कंडीशन में सुधार हो रहा था, ठीक है। मतलब ये लोग
यूरोपियन लोगों के प्रभाव से मुक्त हो रहे थे, ठीक है, और एक मजबूत देश बनने की दिशा की ओर कदम बढ़ा रहे थे। पर्सिया किसको कहे? ईरान को कहे, ठीक है। और इसके अलावा इसके अलावा ह्यूमिलिएशन suffered by Indians abroad, like in Fiji, Canada and South Africa. Okay, deteriorating conditions of people, deteriorating financial conditions of the people of India due to rising inflation and rise in irrigation taxes as well as revenues, agricultural revenues. See, ये सारे भी प्रमुख कारण थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लाने के लिए, जिसमें से हमने बताया इजिप्ट, पर्सिया और तुर्किस्तान का जो कंडीशन सुधार हो रहा था। उसके अलावा भारतीय जो विदेश में जाते थे, फिजी, कनाडा और साउथ अफ्रीका में, उनके साथ अमानवीय व्यवहार, ठीक है। और इसके अलावा जो फाइनेंशियल कंडीशन था लोगों का, इंडियन पीपल के में, जो फार्मर किसानों का जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा था, क्योंकि इरिगेशन, सिंचाई टैक्स बढ़ा दिया गया, और उसके बाद कृषि सेस भी बढ़ा दिया गया, ठीक है। इनके अलावा लॉर्ड कर्जन के बारे में मैं बता रहा था, उनकी नीतियां जिसके खिलाफ लोग बहुत ज़्यादा हतोत्साहित थे, ठीक है, और आंदोलन कर रहे थे। जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल था, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसके चलते लोग इतना उत्तेजित थे, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ। लॉर्ड कर्जन 1898 to 1905, okay. Lord Curzon was an officer of highly bureaucratic attitude and autocratic temperament. Was unpopular among Indians due to his policies. See, Lord Curzon was an officer, okay, who was
was unpopular among Indians due to his bureaucratic attitude. नौकरशाह वाला जो उसका घमंड था, जो उसका व्यवहार परिलक्षित होता था, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड एंड ऑटोक्रेटिक टेम्परामेंट, ठीक है, तानाशाही रवैया, ठीक है, जिसके चलते वो काफी अलोकप्रिय था भारतीयों में। और लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसियां थी उनमें से कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट 1900, okay, in which number of representative was reduced from 75 to 50. Okay, among his unpopular policies, one was Calcutta Corporation of 1900, in which number of representative was reduced from 75 to 50. ठीक है, and other were in 1900, other were his University Act of 1904 was also unpopular, अलोकप्रिय था। 1904 में इसने यूनिवर्सिटी एक्ट लाया जो कि काफी अलोकप्रिय था, ठीक है। और इसके अलावा इन 1904 बजट सेशन he announced that the officers of the Indian Civil Service officers of the Indian Civil Services were to be recruited at higher places, at higher posts. Budget session, he announced that the officers of the Indian Civil Services were to be recruited at higher posts, but this was only for Britishers, ठीक है, मीन्स भारतीय सिविल सेवा से जो भी अधिकारी आएंगे नियुक्त होके, ठीक है, तो उसमें सबसे ऊंचे ओहदे पर किसको रखा जाएगा? जो अंग्रेज लोग थे उनको, ठीक है। भारतीय लोग इंडियन सिविल सेवा पास करके आते परीक्षा, उनको उतने ऊंचे ओहदे पर नहीं ले जाया जाता, ठीक है। सो सी these were the chief causes which led for the enactment of Indian Council Act of 1909. Okay, and now I am going to discuss about the main provisions of the Indian Council Act 1909. Okay, so see, main provisions of the Act of the Indian
See, through this act, not only the see See, through this act, Indians were not only associated into the legislative council, but they were also made to participate in the governance of the country. Okay, the legislative council were strengthened and the powers of the members were also increased. Okay, and by the enactment of this act, a narrow franchise, indirect elections, and communal representation. Okay, these things were brought in the administration, which are new concept. Okay, so now let us see. Through this act, Indians were associated Indians were not only associated in the works of governance, but they were also made to participate in the government. This act increased the strength of the legislative council and also increased its power. By this act, communal representation, narrow franchise, and indirect elections were introduced which heralded a new era in the Indian administration. See, through this act, Indians were not only associated with the legislative council, but they were also made part of the government. Okay, and this act not only strengthened but also increased the powers of the members of legislative council. Okay, and through this act, communal representation, narrow franchise, and indirect elections were introduced, which heralded a new era in the Indian administration. See, I would like to explain the term narrow franchise. What does this mean? Narrow franchise. See, narrow franchise means, narrow means sankara means
less broad. Okay, and franchising term is used related to electoral systems. Okay, means the voters and those who are eligible to be voted. Okay, मतलब ये फ्रेंचाइजी हुआ उनके लिए, जैसे कि जो वोटर है उनका क्या होगा, बहुत कम लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया गया था। नैरो फ्रेंचाइजी कहने का अर्थ ये है कि उस समय भारत की जनसंख्या जितनी थी उस जनसंख्या के मात्र 1 से 1.5% लोगों को ही वोट करने का अधिकार दिया गया, और इलेक्शन में खड़े होने का भी अधिकार कुछ ही लोगों को दिया गया, जैसे जमींदारों को, यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं को, चाहे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, चाहे कॉरपोरेट सेक्टर्स को, ठीक है, या जो लोग ज़्यादा टैक्स पे करते थे उन लोगों को, ठीक है। तो उस समय का जो इलेक्टोरल सिस्टम था वो काफ़ी सकड़ा था, इसलिए हमने यूज़ किया टर्म नैरो फ्रेंचाइजी, ठीक है, इसलिए नैरो फ्रेंचाइजी यूज़ किया, ठीक है। नाउ सी सम अदर प्रोविजंस ऑफ दैट। Say through this act, it was made provision that there should be an increase in the number of members in the legislative council of not only the central but also in the provincial legislative council. Okay, for which the numbers were increased. Okay, in the central legislation, see, in the, let me explain this thing like this. In the central legislation and provincial council, see, in the central legislative council the number of members were increased from 16 to 60. Okay, there was increase in the number of legislative members from 16 to 60, and in the provinces it was increased to 50. Okay, in the provinces like Bengal, Madras, Bombay and UP, but the number of members in the provinces like Assam, Punjab and Burma to be increased to 30. See, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे उनकी संख्या बढ़ा के 16 से 60 कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये संख्या बढ़ा के 50 कर दिया गया, ठीक है। लेकिन 50 किस किस स्टेट का संख्या था लेजिस्लेटिव मेंबर का? बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और यूपी। चूंकि ये लोग बड़े स्टेट थे इसलिए यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स की संख्या अधिक थी, 50 थी, और ये सब छोटे थे और बाद में बने थे। आसाम, पंजाब और बर्मा छोटा स्टेट था और बाद में बनाना था,
बना था, इसलिए यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर की संख्या 30 कर दी गई। ठीक है, और इसके साथ ही एक चीज और, in the provinces the number of non-official members were in majority over official members, but in the central legislative council official majority was retained। सी देखिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का जो संख्या था उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, ऑफिशियल मेंबर से अधिक संख्या में नॉन ऑफिशियल लोग, मतलब गैर सरकारी लोगों का संख्या प्रोविंस में सरकारी मतलब कर्मचारी से अधिक होता। ठीक है, लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल का जो संख्या था मतलब सरकारी का वो अधिक रखा गया। ठीक है, लेकिन प्रोविंस में क्या किया गया, संख्या ऑफिशियल का कम रहा और नॉन ऑफिशियल का संख्या बढ़ा दिया गया। ठीक है, और इसके अलावे सी there was also increase in the deliberative functions of the members in both the levels, that is in central legislature as well as in provinces। ओके, देखिए, जो क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं था, बजट पे कोई प्रश्न नहीं कर सकते थे और बजट के अलावा भी किसी और चीज पे प्रश्न नहीं कर सकते थे, प्रश्न करने का अधिकार नहीं था नॉन ऑफिशियल्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो वो अधिकार दिया गया, इनको डिस्कशन का अधिकार दिया गया प्रोविंस में भी और सेंट्रल में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, they were allowed to ask supplementary questions as well as raise their concerns over budget। ठीक है, उन लोगों को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार मिल गया एंड रेज कॉन्सर्न्स ओवर बजट, बजट पर भी वो लोग पूछ सकते थे। ठीक है, सी apart from reforms in the legislative council, there were also some changes। okay,
in the executive council. Now the doors were opened in the executive council of the governor general also for the inductment of Indians. अब जो है, अब तक हम लोगों ने सुधार और संशोधन ये दोनों चीज़ें किसके लिए देखी? लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। लेकिन अब इस एक्ट के थ्रू, इस एक्ट से ये सुधार और अमेंडमेंट गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से भी शुरू हो गया। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को भी स्थान दिया जाने लगा और सर्वप्रथम गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह पाने वाले भारत से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ठीक है, जिनको लॉ मेंबर के तौर पे कानूनी मामलों में सुझाव देने के लिए उनको उसी कानूनी सदस्य के रूप में स्थान मिला था, ठीक है। सो लेट अस सी, कानून पर सुझाव देने के लिए, ठीक है, कानून के विषय पर सुझाव देने के लिए उनको जगह दिया गया था। सो सी, नाउ द इंडियंस were inducted to be inducted in the Viceroy's Executive Council also, okay, and the first Indian to be inducted in the Viceroy's Executive Council was Satyendra Prasad Sinha as a law member. So, with the inductment of Dr. Satyendra Prasad Sinha as a law member, now the Governor General's Executive Council or the Viceroy's Executive Council was to consist of how many members? 6 members. 6 members, including Commander-in-Chief. Okay, because from now one Indian was given a place in the Viceroy's Executive Council. Okay, so now see, a provision of communal electorate system was started with the enactment of the Council Act of 1909, okay, through which a separate electoral system was to be given to Muslim, okay, and the Muslim elections were to be executed out through the votes of Muslim candidates only. See, now let us see. Through this act, a provision was made for
कम्युनल और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, communal representation under the provisions of this concept a separate electorate were to be established for Muslims and the representatives of communal representation were to be elected through Muslim voters only. Through this act, communal representation was legalized and Lord Minto, Viceroy, came to be known as father of communal representation. See, one thing more. बाल गंगाधर तिलक was known as father of Indian commutation. Commutation means great noise or excitement. See, some time back when I discussed about the Bal Gangadhar Tilak, I forgot to say one thing, that father of Indian commutation was known as Bal Gangadhar Tilak. Bal Gangadhar Tilak was known as father of Indian commutation. Commutation means great noise और excitement. ठीक है, मतलब ये लोगों को उत्साहित करते थे, जागृत करते थे, ठीक है, क्रांतिकारी एक्टिविटीज करने के लिए, ठीक है, जिससे कि देश आज़ाद हो सके, ठीक है. एंड लॉर्ड मिंटो वाज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये लॉर्ड मिंटो जो वाइसराय थे उन्हीं के कार्यावधि में ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का दौर शुरू हुआ, ठीक है. सो इसके अंतर्गत क्या हुआ, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में ये हुआ कि कोई मुस्लिम मतलब जहाँ पे माइनॉरिटी है मुस्लिम, तो वहाँ पे माइनॉरिटी में क्या होगा, मुस्लिम ही कैंडिडेट खड़ा होगा इलेक्शन में, और उसको वोट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही देंगे,
गैर मुस्लिम नहीं देंगे उसको वोट, ठीक है। तो वो मुस्लिमों के वोट से ही जीत के वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपना स्थान पाता, ठीक है। नाउ सी, provision was also made for a separate representation of presidency corporations, Chamber of Commerce, universities, and zamindars. Okay, there were 4 types of members. Consisting in the Viceroy Council. Okay, these were ex officio members, non-official, nominated officials, nominated non-officials, and elected. See, apart from the communal representation, okay, the provision was also made for the separate representation of presidency corporations. मीन्स राज्यों में जो भी उद्योग वगैरह थे, संस्था थे, ठीक है, या व्यवसाय कारखाना वगैरह थे, तो उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए भी अलग व्यवस्था किया गया, ठीक है। सो प्रोविजंस वाज मेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार। ओके, एंड देयर वेर 4 टाइप्स ऑफ मेंबर्स कंसिस्टिंग इन द वाइसराय काउंसिल। वाइसराय का जो काउंसिल था उसमें 4 तरह के मेंबर्स को स्थान दिया गया। एक्स ऑफिसियो मीन्स पदेन, ठीक है, एक्स ऑफिसियो मेंबर्स, नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स एंड इलेक्टेड। देखिए, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स कौन होते थे? नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स मतलब जो अंग्रेजों के चाटुकार होते थे, ठीक है, उनको जगह दिया गया ये कह के कि चूंकि उनको अनुभव है, लोकल एरिया का उनको अनुभव है, यहाँ के लोगों के बारे में अनुभव है, तो एक ऐसे आदमी नॉमिनेटेड होने चाहिए जो गैर सरकारी हो, ठीक है, और वो गवर्नर को एड एंड एडवाइस देने के लिए नॉमिनेटेड किया जाए गवर्नर के द्वारा। गवर्नर के द्वारा वो नॉमिनेटेड होता, लेकिन वो उत्तरदायी किसके प्रति होता? लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति। वो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। ये नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स वेयर टू बी responsible for the legislative council and not for the governor. It was made a provision. Okay, so now see, ऐसे जो इलेक्टेड थे
इलेक्टेड मेंबर्स, वो भी नॉन ऑफिशियल ही थे, लेकिन मैंने बात किया किसका, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स के बारे में मैंने कहा कि चाटुकारों को जगह दी जाने लगी, उसके थ्रू दिया जाने लगा। See, the provision of communal representation showed disparity not only among the Muslim electoral system the provision of the communal representation showed disparity not only among the Muslim electoral system between other provinces, but it also showed disparity among Muslim minority and other minorities. Apart from this, the Viceroy, apart from this, the government could debar a person from contesting an election on the ground of agitation against Britishers. See, ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो प्रोविजन था ये वेरी करता था, एक समान एक रूपता यूनिवर्सल नहीं था, मतलब एक रूपता नहीं था इस लॉ में, क्योंकि जो अगर बिहार में माइनॉरिटी के लिए जो अधिकार दिया गया मुस्लिम इलेक्टोरल के लिए वो यूपी में अलग था, जैसे मुस्लिम वोटर्स के लिए और मुस्लिम जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था उसके लिए पूरे इंडिया में एक समान दिया जाना चाहिए था, ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो इसके लॉ में वेरिएशन था, ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन नहीं था, और उसके साथ साथ नॉन मुस्लिम के साथ भी जो माइनॉरिटी थे नॉन मुस्लिम अदर स्टेट में उनके साथ भी एकरूपता नहीं था, जैसे जो अधिकार मुस्लिमों को दिया गया वही अधिकार दूसरे माइनॉरिटीज को भी दिया जाना चाहिए था, जैसे सिख के साथ, बुद्धिस्ट के साथ, ठीक है, जैन के साथ, या फिर जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में थे जिस स्टेट में, जैसे ईस्टर्न बंगाल जो अभी बांग्लादेश है वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में थे, ठीक है, कश्मीर में थे, खैर कश्मीर का बात नहीं लेते हैं, पंजाब में हिंदू माइनॉरिटी में थे, तो
ये सब चीज़ का जिक्र नहीं किया गया इसमें, ठीक है। मतलब अंतर था, वेरिएशन था एमंग मुस्लिम्स। मुस्लिम का जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, मुस्लिम के बीच में भी वो एकरूपता नहीं था, और मुस्लिम का जब तुलना किसी और दूसरे माइनॉरिटी अल्पसंख्यक से किया जाता था तो वहाँ पर भी वेरिएशन था, एकरूपता नहीं था, ठीक है। और इसके साथ ही गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को चुनाव में हिस्सा लेने से मना कर सकता था इस आधार पर कि उसने सरकार के खिलाफ जो धरना दिया या सरकार के खिलाफ जो बगावत हुआ उसमें वो शामिल था। मतलब सरकार के खिलाफ वो धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति। अगर वो शामिल किसी भी तरह की एक्टिविटी में है गवर्नमेंट के खिलाफ तो उसको इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था, ठीक है। सो थैंक यू। इन द नेक्स्ट क्लास we will discuss about the Government of India Act 1919, the Indian Council Act of 1909, which I have discussed today, was the or is the last of the sisters of the Councils Act. Okay, means there were 3 Council Acts that were enacted. Okay, and this Council Act of 1909 was the last. Okay, now we will discuss Government of India Act 1919. Okay, so thank you.